dear students, let us learn today about neutralization. In the previous class, we had learnt about which substances are acidic, bases and neutral, and also we had learnt about several indicators. Now our aim today is to understand the question and give rise to answers of what happens when acidic substances mix with basic substances. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है. As you can see over here, यहाँ पे बोल रहे हैं let us experiment. ना इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या करना है. देखिए हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, राइट. हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में हमें एक लेमन जूस सोल्यूशन बनाना है, यानी कि लेमन जूस डालना है और पानी डालना है. तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, लेमन जूस सोल्यूशन. अब क्या करना है, इसमें हमें डालना है ब्लू लिटमस. अब क्या करना है, ब्लू लिटमस डालना है. पर ब्लू लिटमस के डालते ही क्या होगा, बिकॉज इट इज एसिडिक, लेमन जूस इज एसिडिक, राइट. द ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड इनटू red, right. Acids turn blue litmus red. Now the solution will be turning into red. So here the solution is turning into red. लेकिन जब हम इसी टेस्ट ट्यूब में हम जब बेस ऐड करेंगे, जैसे कि लाइम वाटर, हमने लाइम वाटर ऐड कर दिया. अब क्या होगा, लाइम वाटर इज बेस and you know bases turn red litmus blue. तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि धीरे धीरे रेड कलर इज गोइंग ऑफ and blue color appears. Yes my dear student. तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ब्लू कलर अपीयर होता है टेस्ट ट्यूब में. तो क्या मतलब हुआ कि बेस ने क्या किया, बेस ने एसिड के इफेक्ट को काटा, और वैसे ही एसिड भी बेस के इफेक्ट को काटेगा. तो एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं बेस को और बेस भी न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को. न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काटना, सीधी भाषा में. देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. Initially when a drop of blue litmus solution is added to lemon juice solution, the color of the solution turns red. Why does it turn red? Because acids turn blue litmus red. When lime water, which is a base, is added to the test tube, what we observed is the solution is slowly turning from red to blue. That is, the solution is no longer acidic. Right, the solution in the test tube is no longer acidic and is converting into basic solution, right. So what has lime water done? What has lime water done? Lime water has neutralized the effect of the acid, right. So when the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic, and such reactions are called neutralization reactions. You can see over here the reaction is mentioned. Acids when reacted with base give rise to salt, water, and also heat is released in the process. That is to say the reaction is exothermic. So in a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution of heat. So in everyday life we witness neutralization reactions. इसके examples पढ़ना ज़रूरी है, questions आते हैं इसके regarding. So let us see क्या क्या examples हैं. यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जो बटरफ्लाई ऑब्जर्व कर रही है. कैन यू ऑल सी दैट द गर्ल इज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई. और सडनली क्या हुआ, एक एंट ने उसको काट लिया और उसको एक शूटिंग पेन हुआ अपने हाथ में. अब उसके ब्रदर को साइंस अच्छे से आता है और उसने क्या किया, उसने बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा उसके पाम पे, उसके हाथ पे रब कर दिया. जहाँ पे काटा था एंट ने वहाँ पे रब कर दिया. और उससे हुआ क्या, एंट इंजेक्टेड एसिड इनटू द स्किन ऑफ द गर्ल. बेकिंग सोडा ने क्या किया, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया. यानी कि साइंस हम अपने लाइफ सेविंग सिचुएशंस में भी ला सकते हैं, राइट. सो साइंस कैन बी लाइफ सेविंग टू. सी, व्हेन एन एंट बाइट्स, it injects an acidic liquid, that is formic acid, into the skin, and the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is base. So
This is a remedy for insect bite, right? Now situation number 2, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? A farmer is spraying some sort of powder onto soil and that powder is चूना, right? कैल्शियम ऑक्साइड क्यों डाल रहा है? वो बेस है, राइट? अब बेस को सॉइल पे डाल रहे हैं, मतलब सॉइल एसिडिक है और एसिडिक इफेक्ट को काटने के लिए द सॉइल इज बीइंग ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम, राइट? तो हमने पहले वाले क्लास में बताया था कि एसिड क्यों होता है सॉइल, बेसिक क्यों होता है सॉइल, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसिडिक सॉइल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब वो जो कार्बन डिराइव्ड मैटर है, राइट? तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेकिंग इनटू सिंपल पार्ट्स बैक्टीरिया करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो क्या होता है, इन द प्रोसेस इट रिलीजेस एसिड इनटू द सॉइल। देन देयर इज अ रीजन फॉर एक्सट्रीमली गुड क्वांटिटी ऑफ रेन, acid rain particularly, and also there is a reason of utilization of excessive nitrogen based fertilizer। एक रिएक्शन होती है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, इसके थ्रू क्या होता है, एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। ये थोड़ा मोटा मोटा समझा दिया, बाकी हम हायर क्लासेस में डिटेल्स में सब पढ़ लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बेसिक अगर सॉइल हो तो क्या करेंगे, वही है, एसिड ट्रीटमेंट हो गई? नहीं, एसिड ट्रीटमेंट नहीं, उसको इनडायरेक्ट एसिड ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, ठीक है? तो इफ द सॉइल इज बेसिक, organic matter like manure and composted leaves are added to it। organic matter क्या करते हैं, they release acids that neutralize the basic nature of the soil। now sometimes the soil may be neutral, ना ही acidic ना ही basic, but the plant growing in it may still show poor health। क्यों? क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, तो इस वजह से भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एसिड बेस आपको लगाते रहना, ये भी जज करना है कि न्यूट्रिएंट्स का अभाव है कि नहीं सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करने होते हैं सॉइल को। नाउ सिचुएशन नंबर 3 क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमेशा ट्रीटमेंट करके ही छोड़ा जाता है वाटर बॉडीज में, बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ा जाता। इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरली एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं तो किस चीज़ से हम न्यूट्रलाइज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यस, बेस से हम न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बेस डालते ही हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन फैलेगा, राइट? प्रॉब्लम्स भी आएंगी कम अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले से ही ट्रीट करें। लाइकवाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर बेसिक है तो एसिड से ट्रीटमेंट कंपलसरी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, for the lives of aquatic animals and for the environment in general। So I hope the concept of neutralization is clear to you। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे contact कर सकते हैं। I'll be happy to help। In the next class we'll be dealing with NCERT question and answers। Happy learning students, bye bye।